Hello Vivekians, welcome to the next day of school from home. What we studied, let's have a recap. We studied about latitudes. What are latitudes? These are the imaginary lines which run parallel to the equator. There are total 90 parallels to the north of the equator and 90 parallels to the south of the equator. Clear? This we have read, and total 181 parallels are there. Next we have read about then another imaginary lines. These are longitudes. What are longitudes? These are the lines which run from poles to poles, and how these are drawn? These are drawn from north to south pole, and total 180 to the western hemisphere and total 180 to the eastern hemisphere, and it is drawn by taking prime meridian as a base. Like इसमें 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड क्या होता है? प्राइम मेरिडियन. ओके, और जब लैटिट्यूड्स की बात करते हैं तो 0 डिग्री लैटिट्यूड किसको बोलते हैं? इक्वेटर को. ओके, नाउ व्हेन वी combine these two lines, what it forms? It forms grid. Okay, it is called grid. This we will study, but firstly let me know about what is grid. These are the lines that indicate where specific place is located on the earth. Like you can see in this figure, these blue lines are latitudes and these green lines are longitudes. When this green and blue line combines, it intersects at a point, and this point is basically called a space. मतलब पर्टिकुलर प्लेस बोलेंगे हम उसको. क्लियर? लाइक सपोज दिस इज 30 डिग्री वॉट एन एंड इट इज मीटिंग एट वॉट विच लॉन्गिट्यूड. ये कौन सा लॉन्गिट्यूड है जो इससे मीट होकर जा रहा है? इट इज 10 डिग्री. और ये कौन सी साइड है? ईस्टर्न. तो इट इज 30 डिग्री एन एंड 10 डिग्री ईस्ट. ओके, तो इस प्लेस पर, इस पॉइंट पर जो प्लेस होगी वो हम ग्रिड की हेल्प से लोकेट करते हैं. क्लियर? दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ ग्रिड टू लोकेट प्लेसेस ऑन द ग्लोब. Okay, these are the intersection of latitudes and longitudes, and every point on the grid is one location. एक लोकेशन होती है each and every point. जैसे गूगल मैप्स होते हैं ना, हम प्लेस को लोकेट करते हैं. इट इज डन विद द हेल्प ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स. फाइन. Is it clear? Okay. Now we will read about international dateline. What is international dateline? International dateline lies opposite to the prime meridian. It is mostly on 180 degree line of longitude and it passes through the middle of Pacific Ocean. ये Pacific Ocean के सेंटर से पास करती है और ये लाइन zigzag वे में होती है. It is drawn in zigzag way because कुछ आइलैंड्स तो इसकी वेस्ट साइड पे होते हैं, कुछ दूसरी राइट साइड पे होते हैं और कुछ लेफ्ट साइड पे होते हैं. और ये zigzag मैनर में इसलिए होती है सो दैट इट शुड नॉट कट सम कंट्रीज इन हाफ, कि हाफ में कुछ कंट्रीज कट ना हो, नहीं तो उसी कंट्री का टाइम दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता. दैट्स वाई इट इज ड्रॉन इन zigzag मैनर. और जैसे ही कोई इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करता है, चाहे उसकी ईस्ट को क्रॉस करे या वेस्ट को क्रॉस करे, तो उसके अकॉर्डिंग डेज और डेट चेंज हो जाती है. ओके, let me tell you how it is. Suppose now we will read in detail about international dateline. This is prime meridian. For example, on prime meridian the time is 6 p.m. Clear? When we reach to this east side, means 180 degree east to its right side and 180 degree west to its left side. Fine. 180 degree east means it is 12 hours ahead of prime meridian. Okay, means ये prime meridian से 12 घंटे प्लस है. और अगर हम 180 डिग्री वेस्ट की बात करें, it is 12 hours behind. Clear? For example, अगर यहाँ पर टाइम हो रहा है 6 PM, तो अगर हम इसके 12 hours ahead की बात करें तो यहाँ पर क्या टाइम हो रहा होगा? यहाँ पर क्या टाइम हो रहा होगा? 12 hours ahead means 6 AM बट ऑफ नेक्स्ट डे. सपोज यहाँ 26 अप्रैल की इवनिंग हो रही है, तो इसके 12 आवर्स आगे कितने हो जाएंगे? 27 अप्रैल मॉर्निंग टाइम. इन द सेम वे अगर हम इसकी वेस्ट साइड की बात करें, 6 PM बट इट इज बिहाइंड ना, सो इट मीन्स अगर यहाँ 26 अप्रैल
वाले दिन 6 PM इवनिंग टाइम हो गया, तो अगर हम इसको 12 आवर्स पीछे ले जाएं तो क्या हो जाएगा 6 AM उसी दिन 26 अप्रैल। और ये होता कैसे है, ये क्यों होता है ऐसे, बिकॉज 15 डिग्री 1 आवर के इक्वल होती है। 15 डिग्री मूव करने से 1 आवर में चेंज आता है, और अगर हम 180 डिग्री मूव करते हैं तो 180 अपॉन 15 इज इक्वल टू 12 आवर्स। तो कितने आवर्स का चेंज आता है, 12 आवर्स का। तो अगर हम यहाँ मूव करते हैं तो भी 12 आवर्स, और अगर उसके लेफ्ट साइड मूव करते हैं 12 आवर्स पीछे चले जाते हैं। इट मीन्स अगर हम पूरी दोनों साइड्स को मूव करते हैं तो टोटल 24 आवर्स का चेंज आता है। 24 आवर्स मीन्स फुल 1 डे। अगर हम इसकी if we move from west to east, a day is added, and if we move from east to west, a day is deducted according to international date line. Is it clear? और आपको मैं बताऊं, इंडिया जो हमारी कंट्री इंडिया है उसमें 82.5 डिग्री ईस्ट इज चूजन एज स्टैंडर्ड मेरिडियन, ओके, एंड विच इज 5 hours 30 minutes ahead of GMT. GMT क्या है, ग्रीनविच मीन टाइम, मीन्स जो मैंने आपको बताया था ना, ग्रीनविच इज प्लेस इन लंदन। तो अगर हम बात करें तो इट इज अहेड ऑफ मतलब लंदन से 5 hours आगे है। क्लियर? सो नाउ एज यू नो, ये होता क्यों है, बिकॉज अर्थ जो होता है वो रोटेट कैसे करता है, वेस्ट टू ईस्ट। तो ईस्टर्न रीजन सबसे पहले सनलाइट फेस करता है, दैट्स व्हाई इट इज अहेड। क्लियर? सो जब भी टाइम होता है वो 12 आवर्स आगे चलता है और वेस्टर्न साइड में 12 आवर्स पीछे चलता है। नाउ इज इट क्लियर? इंटरनेशनल डेटलाइन टॉपिक आपको क्लियर हो गया? नाउ व्हेन यू विल रीड दिस टॉपिक इन योर बुक, you will come to know easily what I have told you. Clear? The moment you cross east of it, you gain a day, and the moment you crossed west of it, you loses a day. Clear? So accordingly the days and dates are changed. Now what you have to do is, I'll give you one activity. आपको different time को, you have to note down the time difference between the different countries. That will be given in PDF. Thank you.